Jai Bharat, dear all Bacha party. So in our last lecture we discussed about the modification of plasma membrane, right? And now we are proceed for the next topic, that is known as a cell wall. As we know that in prokaryotic cell, in bacteria, cell wall is made up of peptidoglycan, but here the thing is different because here we are talking about the cell wall present in eukaryotic cell. That includes fungi and plant cell, right? Okay, so let us start with the plant cell, right? If we talk about the cell wall, the information of cell wall was given by a scientist known as Robert Hooke, and that we have already discussed, right? So discovered by a scientist Robert Hooke in 1665 in cork slice, or we can say that in Quercus plant, and that was basically a dead cell wall because there was a deposition of suberin, right? That we had already discussed in a first lecture of this chapter, right? The thickness is various from 0.1 to 10 micrometer, right, or more than that. It is outermost layer, rigid layer, protective layer, and supportive layer, and dead layer, right? So basically cell wall is outermost, thick, rigid, protective, and dead layer. See, here the word dead layer is used for, commonly it is used for cell wall. But if you talk about the first deposition of cell wall, that is a primary cell wall is not a dead material because it performs many enzymatic activity. Okay, cell wall is a characteristic feature of all plant cell, and it is not present, or we can say that the except gametes and zoospore. So almost all plant cell has what? Cell wall, except two things. One is a gametes, right, and the other one is spore. In case of a human being, we directly produce what? Gametes by the process of gametogenesis. While in case of plant cell, there are two phases. The first one is sporogenesis, which is followed by the gametogenesis. So that spore and gametes both are without a cell wall, right? Because these are the part which is related with the fertilization, right? And that is because they are without cell wall. So this point is important one. So cell wall is the characteristic features of all plant cell except gametes and zoospore, right? Cell wall is absent in animal cell, that we have already know, right? It is secreted by the cytoplasm. So basically cell wall is formed by the cytoplasm after, we can say that, or the last part of the cytokinesis. Cytokinesis is nothing but the phase of a mitotic cell division. The first one is M phase, and the second phase is known as cytokinesis. In M phase there are many phases, for example prophase, metaphase, anaphase, telophase, and after that telophase there is a cytokinesis, and after that cytokinesis process, or during that process, we can say that there is a deposition of cell wall between the two nucleus part, right? That we will discuss later in the same video. It is secreted by the cytoplasm, and adjacent cell wall in plants are cemented by what? Calcium pactate, which form what? Middle lamella. That also we have discussed earlier. So middle lamella is basically formed by the calcium pactate. Here we should write that it is also made up of magnesium pactate. So middle lamella is nothing but the one of the layer, right, which is a common layer between the two cell, which is known as the middle lamella, and that middle lamella is made up of what? Calcium pactate, right? This middle lamella is formed by the phragmoplast, which is a fragment of Golgi body and ER, that we will discuss in a same video. Okay, in cell wall, pactate act as filter, glycoproteins orient the fibers, and hemicellulose bind the fibers. See, क्या लिखा है यहाँ पे? In cell wall, pactate act as a filter. Pactate जो है वो कैसे काम करता है? It act as a filter, और वो हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी डिपोजिशन जो है वो वहां से फिल्टर होके जा रहा है, राइट? ग्लाइकोप्रोटीन ओरिएंट्स द फाइबर. ग्लाइकोप्रोटीन जो है उसका काम ये है कि उसका ऊपर फाइबर जो है उसका अच्छी तरीके से अरेंजमेंट हो. सो बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन इज अ लेयर ऑन विच देयर इज अ ओरिएंटेशन ऑफ अ फाइबर, एंड हेमीसेल्यूलोज बाइंड द फाइबर्स. हेमीसेल्यूलोज जो है वो फाइबर से जुड़ता है. लेकिन ये किस फाइबर की बात कर रहे हैं? वो फाइबर की बात कर रहे हैं सेल्यूलोज की. किसकी बात कर रहे हैं? सेल्यूलोज. तो अगर हम सेल्यूलोज की बात करें तो उससे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि सेल्यूलोज जो है वो फॉर्म कैसे होगा. ठीक है, तो यहां पे एक चीज याद रखो,
अराउंड 6000 मॉलिक्यूल ऑफ डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज का मतलब क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज, राइट। 6000 मॉलिक्यूल ऑफ डी ग्लूकोज टूगेदर फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ cellulose, right, and the linkage which is formed here is beta 1,4 glycosidic linkage is nothing but the beta 1,4 glycosidic linkage। उससे क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल सेल्यूलोज का। many cellulose molecule together form micelles and many micelles together form microfibrils and many microfibrils together form macrofibril and many microfibril then after it arranged on the surface of hemicellulose fiber, glycoprotein and pectate। ये तीनों का जो मिक्सचर होगा उसके ऊपर ये हम ये बोल सकते हैं कि ये मैक्रोफाइब्रिल जो हैं वो क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे और उससे पूरा सेल्यूलोज जो है वो डिपोजिट हो जाएगा एंड सेल वॉल जो है क्या हो जाएगा, फॉर्म। यहाँ पे हमको ये चीज़ भी याद रखनी पड़ेगी कि सेल वॉल जो एक ही टाइप के नहीं है, सेल वॉल जो उसका ग्रेजुअल डिपोजिशन है। पहले जो बनेगा वो प्राइमरी सेल वॉल, देन आफ्टर सेकेंडरी सेल वॉल, देन आफ्टर टर्शियरी सेल वॉल। इसमें अगर हम प्राइमरी सेल वॉल की बात करें, याद रखना बच्चा पार्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। इफ वी टॉक अबाउट द प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल और दूसरा कौन सा होगा, सेकेंडरी सेल वॉल। अगर प्राइमरी सेल वॉल की बात करें देन इन प्राइमरी सेल वॉल प्रीडोमिनेंटली इट इज मेड अप ऑफ हेमीसेल्यूलोज। वो किससे बना है, हेमीसेल्यूलोज से। प्रीडोमिनेंटली इट इज मेड अप ऑफ हेमीसेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज जो इट इज अ फ्लेक्सिबल। और अगर सेकेंडरी सेल वॉल की बात करें तो सेकेंडरी सेल वॉल प्रीडोमिनेंटली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज विच इज अ रिजिड फाइबर, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वॉल मतलब सेल वॉल विच इज फॉर्म अर्लियर, राइट, जस्ट इमीडिएट आफ्टर टू द साइटोकाइनेसिस। तो पहले जो सेल वॉल बन रहा है वो कौन सा है, प्राइमरी सेल वॉल एंड इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, हेमीसेल्यूलोज। उसके बाद बन रहा है वो क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल और वो क्या है, सेल्यूलोज से बना है प्रीडोमिनेंटली। प्रीडोमिनेंट का मतलब क्या है कि ज्यादा जो है उसमें सेल्यूलोज होगा, किसमें, सेकेंडरी सेल वॉल में, और प्राइमरी में हेमीसेल्यूलोज। और इसलिए प्राइमरी सेल वॉल जो है इट इज अ फ्लेक्सिबल व्हाइल सेकेंडरी सेल वॉल इज नॉट, ठीक है। चलिए, तो ये तीनों ग्लाइकोप्रोटीन, पैक्टेट एंड हेमीसेल्यूलोज वो तीनों मिलके एक क्या बनाते हैं, एक लेयर बनाता है और उसके ऊपर धीरे धीरे मैक्रोफाइब्रिल्स जो किससे बना है, सेल्यूलोज से, वो डिपॉजिट होंगे और वैसे ग्रेजुअली सेल वॉल जो है वो बनता जाएगा। चलिए, प्राइमरी सेल वॉल इज capable of growth and it involved in many enzymatic activities, so consider as living cell wall। यहाँ पे ये जो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो प्राइमरी सेल वॉल को हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ लिविंग पार्ट। और लिविंग पार्ट क्यों, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। सपोज अगर हम बात करें मेरिस्मेटिक सेल की, राइट, मेरिस्मेटिक सेल इज अ पार्ट ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड मेरिस्मेटिक टिश्यू इज रिलेटेड विद द ग्रोथ, राइट। इफ इट इज रिलेटेड विद द ग्रोथ दैट मीन्स continuously it perform what, cell division। और अगर सेल डिवीजन कंटिन्यूसली परफॉर्म करना है उसका मतलब ये है कि उसका सेल वॉल जो है वो कैसा होना चाहिए, इट शुड बी फ्लेक्सिबल। कैसा होना चाहिए, इट शुड बी फ्लेक्सिबल। और इसलिए याद रखना बच्चा पार्टी, इसलिए मैरिस्मेटिक सेल जो है दैट कंटेन्स ओनली व्हाट, प्राइमरी सेल वॉल। वो सिर्फ उसमें क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल। Once the cell is differentiated, if the cell is differentiated, that means that cell lost the ability to divide। वो सेल में फिर सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं होगी, तो फिर उसके बाद जो क्या डेवलप होगा, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल इज नॉट फ्लेक्सिबल, इसलिए उसके बाद वो सेल का क्या नहीं हो सकता, डिवीजन नहीं हो सकता। सो इन मेरिस्टेमेटिक सेल देयर इज ओनली अ प्राइमरी सेल वॉल and that primary cell wall is predominantly made up of what, hemicellulose, and hemicellulose is flexible, right, and that primary cell wall is considered as a living part. If somebody asks you that whether the cell wall is dead or alive, it is a dead, right, because we are talking about the common. But if somebody asks you that whether primary cell wall is living or not, yes, it is living because it performs many enzymatic activity. Okay, so cell wall is formed by three coat. Basically cell wall is not a single layer, it is made up of three part. Out of the three part, one part is living and that is a primary cell wall, right? Okay, so what kind of that three layer are? The first one is known as primary cell wall, right? यहाँ पे देखिए मैंने एक सेल बनाया है
and this cell completed M phase of cell cycle. M phase complete किया, उसका मतलब क्या हुआ? M phase related with the karyokinesis, right? Karyokinesis means nuclear division. So prophase, metaphase, anaphase, telophase, ये तीनों चारों जो है वो हो चुके हैं। और इसलिए देखिए दोनों के न्यूक्लियस जो मैंने सेपरेट बनाए हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि karyokinesis जो है इट इज ऑलरेडी डन, राइट? नाउ द सेकंड पार्ट इज रिमेनिंग विच इज नोन एज साइटोकाइनेसिस, मींस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ओके, सो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में ये दोनों साइड न्यूक्लियस है, एंड दिस बोथ साइड is nothing but the cytoplasmic region. This is the cytoplasmic region and this one is also a cytoplasmic region, right? And this red part shows middle lamella, right? So basically it is a deposition of calcium and magnesium pactate, और ये जो है it is nothing but the middle lamella. ये स्ट्रक्चर क्या है? इट इज नथिंग बट द मिडल लैमेला, और मिडल लैमेला जो किससे बना होगा? कैल्शियम पैक्टेट या एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। ओके, तो ये रेड पार्ट जो है इट इज नथिंग बट द मिडल लैमेला। अब दोनों साइड साइटोप्लाज्म डिवाइड हुए, तो इस साइड क्या होगा? इस साइड जो है वो अगर हम बात करें तो दोनों साइड के जो साइटोप्लाज्म है उसमें जब कैरियोकाइनेसिस हुआ होगा तो ऑलमोस्ट ऑल द मटेरियल ऑफ द सेल इज गेट डबल, सारा मटेरियल क्या हो चुका है? डबल, इंक्लूडिंग ऑर्गेनल्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ER प्लस गोल्जी बॉडी है, यहाँ पे भी क्या है? ER प्लस क्या है? गोल्जी बॉडी। सो बेसिकली दिस ER एंड गोल्जी बॉडी रिलीजेस fragments, this kind of fragments it is, right? And gradually that fragment is deposited on either side of the middle lamella, ठीक है? और ये जो fragments हैं that is known as phragmoplast. What it is called? Phragmoplast. So phragmoplast is nothing but the fragment of a Golgi body and the ER. It is made up of Golgi body and ER. ठीक है? और ये phragmoplast जो दोनों साइड से क्या होंगे? डिपोजिट होते रहेंगे, राइट? एंड ग्रेजुअली दिस phragmoplast फॉर्म व्हाट? प्राइमरी सेल वॉल। वो क्या बनाएंगे? प्राइमरी सेल वॉल, ठीक है? चलिए तो वो देखते हैं। इट इज द आउटर, प्राइमरी सेल वॉल जो है वो क्या है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, राइट? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, थिनर लेयर एंड इलास्टिक लेयर, ठीक है? तो वो आउटर मोस्ट लेयर है, थिनर लेयर है एंड इट इज द इलास्टिक लेयर। इट इज द लिविंग कोट, अभी हमने बताया, एंड शोज, देखिए क्या लिखा है मैंने? इंस्ट्रक्शनल का मतलब क्या होता है कि दोनों साइड से वो प्राइमरी सेल का क्या होगा? ग्रोथ जो है वो होगा। तो दोनों साइड का जो साइटोप्लाज्म है वो दोनों साइड का साइटोप्लाज्म जो क्या रिलीज कर रहे हैं? फ्रैग्मोप्लास्ट, राइट? सो बेसिकली इट इज अ ग्रोथ फ्रॉम विद इन द सेल, दोनों साइड से वो डेवलप हो रहा है, ठीक है? फॉर्म्ड ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, ठीक है? लेकिन यहां पे आपको याद रखना है कि सेल्यूलोज, हम बात किसकी कर रहे हैं? प्राइमरी सेल वॉल की। तो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो प्रीडोमिनेंटली किससे बना होता है? हेमीसेल्यूलोज से। प्रीडोमिनेंटली इट इज मेड अप ऑफ हेमीसेल्यूलोज। उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सेल्यूलोज नहीं है, ठीक है? ओके, एंड दिस हेमीसेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ आर्बिनोज, गैलेक्टोज, मैनोज एंड जाइलोज। अब यहाँ पे दो टर्म जो है वो हमको समझने पड़ेंगे, और वो दो टर्म अगर हम बात करें तो अगर एक जो है दैट इज नोन एज होमो पॉलीसैकेराइड और दूसरा जो होता है इट इज नोन एज हेटेरो पॉलीसैकेराइड। तो दो टाइप के पॉलीसैकेराइड हैं, एक होमो पॉलीसैकेराइड एंड हेटेरो पॉलीसैकेराइड। अब उसका एग्जांपल भी मैं लिख देता हूं कि सपोज होमो पॉलीसैकेराइड की अगर हम बात करें तो सेल्यूलोज इज होमो पॉलीसैकेराइड। एक दूसरा भी एग्जांपल लिख देते हैं, स्टार्च, दैट इज ऑल्सो होमो पॉलीसैकेराइड। सेल्यूलोज और स्टार्च वो दोनों क्या है? होमो पॉलीसैकेराइड। हेटेरो पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो वो क्या है? हेमीसेल्यूलोज। अब व्हाट डज इट मीन बाय होमो पॉलीसैकेराइड एंड हेटेरो पॉलीसैकेराइड? If a polysaccharide made up of same kind of monomer unit, for example, cellulose is made up of what? Glucose only, right? So many glucose molecule join together by glycosidic beta-1,4 glycosidic bond and it form what? A molecule of cellulose, right? So cellulose is nothing but the polymer of same kind of monomer and that is why it is known as a homopolysaccharide. Starch भी वही है, लेकिन starch में जो linkage होगा that is alpha 1,4
और सेल्यूलोज में कौन सा होगा, बीटा 1,4, लेकिन है वो मोनोमर यूनिट एक ही टाइप के, ठीक है। तो इसलिए इफ द पॉलीसेकेराइड इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ मोनोमर यूनिट, इट इज कंसिडर्ड एज अ होमोपॉलीसेकेराइड। बट इन केस ऑफ हेमीसेल्यूलोज, सी हेमीसेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ व्हाट, हेमीसेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ GAMX, GAMX। ये शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं एब्रीविएशन है। GAMX का मतलब क्या होता है, G स्टैंड फॉर गैलेक्टोज, A स्टैंड फॉर अर्बिनोज, M स्टैंड फॉर मैनोज एंड X स्टैंड फॉर जाइलोज। तो ये चार टाइप के मोनोसेकेराइड मिलके एक पॉलीसेकेराइड बन रहा है, दैट इज व्हाई इट इज अ हेटेरोपॉलीसेकेराइड। लेकिन प्राइमरी सेल वॉल की अगर हम बात करें तो इन प्राइमरी सेल वॉल प्रीडोमिनेंटली हेमीसेल्यूलोज इज प्रेजेंट, ठीक है। उसका मतलब ये नहीं कि सेल्यूलोज नहीं है, राइट। सो बेसिकली इट इज फॉर्म बाय सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज प्रीडोमिनेंटली एंड पैक्टिन ऑल्सो, ठीक है। और पैक्टिन जो क्या है, पैक्टिन इज अगेन अ पॉलीमर। पैक्टिन जो है वो भी क्या है, पॉलीमर, और वो भी कैसा है, हेटेरोपॉलीमर, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोरोनिक एसिड एंड गैलेक्टुरोनिक एसिड। ग्लूकोन्यूरिक एसिड एंड गैलेक्टुरोनिक एसिड दोनों अलग अलग मोनोमर हो गए, तो वो कैसा हो जाएगा, हेटेरोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो होमोपॉलीसेकेराइड में दो एग्जांपल देखे हमने, सेल्यूलोज एंड स्टार्च, एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड में हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन, ठीक है। तो उससे क्या बनता है, प्राइमरी सेल वॉल जो बनेगा, लेकिन प्रीडोमिनेंटली किससे, हेमीसेल्यूलोज, वो याद रखना। चलिए, मेरिस्मेटिक सेल हैव ओनली प्राइमरी सेल वॉल, अदर सेल हैव अदर लेयर्स आल्सो अलोंग विद द प्राइमरी। मेरिस्मेटिक सेल जो है दैट कंटेन्स ओनली प्राइमरी सेल वॉल, बिकॉज मेरिस्मेटिक सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड, राइट। So if at all it has a secondary cell wall, it is difficult to divide the cell, तो इसलिए सिर्फ उसमें क्या होगा, प्राइमरी सेल वॉल ही होगा। बाकी ये सारे जो डिफरेंशिएट सेल है दैट कंटेन सेकेंडरी सेल वॉल, बट मेरिस्मेटिक सेल में सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होगा। पिट्स आर एब्सेंट इन प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल में क्या नहीं होगा, पिट्स जो है वो नहीं होंगे। अब वो पिट्स जो है वो क्यों नहीं होंगे, क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल जो है वो तो कंटिन्यूअस बना है विद द हेमीसेल्यूलोज, राइट। ओके, उसके बाद क्या बना है, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल जनरेट हुए, और सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो जहां पे सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म नहीं हुआ है, दैट पार्ट, दैट चैनल इज कंसिडर्ड एज अ पिट। अभी हम उसका डायग्राम जो है वो देख रहे हैं। चलिए, सो नेक्स्ट सेल वॉल इज अ सेकेंडरी सेल वॉल। अब यहां पे देखिए मैंने डायग्राम बना है, पहले वो हम उसको लेबलिंग करते हैं और डिटेल जो समझ रहे हैं। इसमें जो रेड लाइन है इट इज नथिंग बट द मिडल लैमेला। वो क्या है, इट इज नथिंग बट द मिडल लैमेला। ओके, अब मिडल लैमेला वो है तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो साइटोप्लाज्मिक पार्ट है, ठीक है। एक ये सेल का साइटोप्लाज्मिक पार्ट है और एक ये जो है वो दूसरे सेल का साइटोप्लाज्मिक पार्ट है। तो ये दोनों क्या है, इट इज अ साइटोप्लाज्मिक पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इससे पहले हमने वर्टिकल सेल बनाया था, उसका डिवीजन हो रहा था, इसके बदले ये हॉरिजॉन्टल है ऐसा समझो, और डिवीजन हो चुका है क्योंकि सेल वॉल है, ठीक है। ओके, तो ये एक साइटोप्लाज्म हो गया, ये दूसरा साइटोप्लाज्म, और बीच में क्या है, मिडल लैमेला। एंड ऑन आइदर साइड ऑफ द मिडल लैमेला देयर इज अ सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है इट इज अ प्राइमरी सेल वॉल। और प्राइमरी सेल वॉल किससे बना होगा बच्चा, पार्टी याद करो। प्राइमरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट, प्रीडोमिनेंटली इट इज मेड अप ऑफ हेमीसेल्यूलोज, ऑल्दो इट कंटेन सेल्यूलोज एज वेल एज पैक्टिन, लेकिन प्रीडोमिनेंटली वो किससे बना है, हेमीसेल्यूलोज से, ठीक है। तो मिडल लैमेला है, उसके दोनों साइड पे क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है। अब देखिए प्राइमरी सेल वॉल कंटिन्यूअस है, हाँ कंटिन्यूअस है, तो उसका मतलब ये है कि इससे पहले जो हमने लास्ट पॉइंट देखा कि पिट जो है दैट डू नॉट ब्रेक द प्राइमरी सेल वॉल। पिट जो है वो कहाँ पे नहीं है, प्राइमरी सेल वॉल में नहीं होता वो, क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल कैसा है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। पिट मतलब बैक एंड पार्ट। ओके, तो वो पहले क्या हुआ, मिडल लैमेला, उसके दोनों साइड पे ग्रेजुअली क्या हुए तो कि प्राइमरी सेल वॉल बने। तो उसका मतलब ये है कि ये दोनों साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है ना, उसमें से ये दोनों साइड से किसका डिपोजिशन हुआ, दोनों साइड से डिपोजिशन होता गया किसका, फ्रैगमोप्लास्ट का, दोनों साइड से, राइट। एंड दैट फ्रैगमोप्लास्ट इज नथिंग बट द फ्रैगमेंट ऑफ ER and Golgi बॉडी। ओके, तो मिडल लैमेला आया, उसके दोनों साइड पे क्या है, प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल के बाद जो है वो देखिए कि प्राइमरी सेल वॉल के बाद तीन लेयर है, ठीक है। एक सपोज ये लेयर है, फिर एक दूसरा लेयर है, फिर एक तीसरा लेयर है, राइट। The first layer which will remain in contact with the primary cell wall is S1 layer, then S2 layer, then S3 layer, ठीक है। और ये तीनों लेयर जो हैं वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, वो फॉर्म कर रहे हैं सेकेंडरी सेल वॉल। वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, सेकेंडरी सेल वॉल।
तो प्राइमरी सेल वॉल जो है उसके बाद जो डेवलप हो रहा है टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म वो क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल। लेकिन वो सेकेंडरी सेल वॉल जो है दैट कंटेन्स 3 सब लेयर। One is S1 which will remain in contact with the primary cell wall, then S2, then S3। तो S3 कहां पे होगा, towards the cytoplasm। S3 कहां पे होगा, towards the cytoplasm। अब ये तीनों लेयर जो है वो बने किससे हैं, तो वो तो हमने अभी देखा। ये अगर मैं इसको सेकेंडरी सेल वॉल बोल रहा हूं उसका मतलब ये है कि प्रीडोमिनेंटली इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, सेल्यूलोज। तो फिर S1 S2 S3 क्यों, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट इन ओरिएंटेशन ऑफ द सेल्यूलोज फाइबर। ठीक है, इसमें सपोज सेल्यूलोज फाइबर जो वर्टिकल है, इसमें सपोज वो हॉरिजॉन्टल है, और इसमें सपोज वो ऑब्लिक फॉर्म में है, राइट। सो अरेंजमेंट और ओरिएंटेशन ऑफ द सेल्यूलोज फाइबर इन S1 S2 एंड S3 आर डिफरेंट, एंड दैट इज बिकॉज वी कंसिडर एज अ 3 सब लेयर ऑफ अ सिंगल लेयर। है वो क्या है, वो सेकेंडरी सेल वॉल ही, लेकिन 3 लेयर S1 S2 S3 हैज डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ सेल्यूलोज फाइबर। ठीक है, तो प्रीडोमिनेंटली इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। यहां पे ऐसा नहीं समझना है कि हमें सेल्यूलोज नहीं है, लेकिन ज्यादा क्या है, सेल्यूलोज। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल जो है वो इट इज प्रीडोमिनेंटली मेड अप ऑफ हेमीसेल्यूलोज। उसका मतलब ये नहीं है सेल्यूलोज नहीं है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली क्या है, हेमीसेल्यूलोज। ठीक है, ओके। अब उसके बाद प्राइमरी बन गया, सेकेंडरी सेल वॉल बन गया। अब उसके बाद क्या आएगा, तीसरा टर्शियरी सेल वॉल। ठीक है, तो टर्शियरी सेल वॉल जो है उसकी अगर हम बात करें तो टर्शियरी सेल वॉल जो है वो कंटिन्यूअस बने ऐसा जरूरी नहीं है, राइट। टर्शियरी सेल वॉल जो है इट इज नथिंग बट द डिपोजिशन ऑफ इम्परमिएबल सब्सटेंस लाइक लिग्निन, शुबेरिन। ठीक है, ये सपोज ऐसे इम्परमिएबल सब्सटेंस जो है उसका क्या हुआ, यहाँ पे डिपोजिशन हुआ। ठीक है, ये हर एक सेल में हो वो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये जो है इट इज नथिंग बट द टर्शियरी, इट इज टर्शियरी सेल वॉल। थोड़ा यहां से हम अलग जगह पे वो लिखते हैं तो वो थोड़ा आपको अच्छे से लिख पाओगे आप। ठीक है, ये जो है वो क्या है, इट इज अ टर्शियरी सेल वॉल। क्या है वो, टर्शियरी सेल वॉल। और टर्शियरी सेल वॉल जो है उसमें डिपोजिशन होंगे, कौन कौन से डिपोजिशन हो सकते हैं, लिग्निन हो सकता है, उसके अलावा क्या हो सकता है, शुबेरिन हो सकता है। ठीक है, तो वो टर्शियरी सेल वॉल है। लेकिन टर्शियरी सेल वॉल जब वो डेवलप होगा या नहीं होगा दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द सेल एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, ओके, लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन आप देखिए कि ये दोनों पार्ट, यहां पे ये पार्ट, ठीक है, यहां पे अगर हम बात करें तो 2 पार्ट जो है वो कोई भी सेल वॉल वहां पे नहीं है एक्सेप्ट प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल है, बाकी की कोई सेल वॉल नहीं है। ये जो दोनों पार्ट है इट इज नथिंग बट द पीट। ठीक है, और इसलिए देखिए हमने पीट की जब हम बात कर रहे थे, पीट इज नॉट रिलेटेड विद द प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल में से कोई रिलेशन ही नहीं है पीट का, क्योंकि वहां पे पीट डेवलप नहीं होगा। प्राइमरी सेल वॉल इज कंटिन्यूअस। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल में जहां पे डिपोजिशन नहीं हुआ दैट फॉर्म अ व्हाट, पीट, एंड थ्रू दैट पीट देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द 2 एडजेसेंट सेल। तो यहां से मटेरियल यहां पे, यहां से मटेरियल यहां पे, दैट इज थ्रू पीट वो पॉसिबल होगा। ठीक है, चलिए, तो ये बीच में मिडिल लैमेला, ऑन आइदर साइड ऑफ द मिडिल लैमेला देयर इज अ प्राइमरी सेल वॉल। फिर डिपोजिशन होगा S1 S2 S3। ठीक है, तो सेकेंडरी सेल वॉल हो गई। देन डिपोजिशन क्या, लिग्निन, शुबेरिन। ठीक है, अब उसके अंदर क्या होगा एक बार वो भी देख लेते हैं। उसके अंदर लास्ट में, इसके बाद आप ऐसा भी समझो कि चलिए ये टर्शियरी सेल वॉल भी होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसा लेयर डेवलप होगा, और ये लेयर जो है इट इज नथिंग बट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मा जो है उसके सबसे बाहर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद टर्शियरी सेल वॉल, फिर उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल, फिर उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल। सो प्राइमरी सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, कई बच्चों को जो है वो ये कंफ्यूजन होता है, प्राइमरी मतलब इनर मोस्ट, नहीं, प्राइमरी मतलब आउटर मोस्ट सेल वॉल। और वो हर एक सेल वॉल में प्राइमरी सेल वॉल जो है दैट इज कंसिडर्ड एज अ लिविंग पार्ट। ठीक है, अदरवाइज सारे जो है वो कैसे है, डेड। लेकिन ओवरऑल हम उसको क्या काउंट करेंगे, डेड सेल वॉल। वो इसलिए क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल का जो थिकनेस है इट इज अ वेरी थिनर एज कंपेयर टू द सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, सेकेंडरी सेल वॉल जो बहुत थिक पार्ट है, मेन पार्ट सेकेंडरी सेल वॉल ही बनाता है। चलिए, तो सेकेंडरी सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी सेल वॉल में देखिए क्या लिखा है मैंने, इट लाइज इनर टू द प्राइमरी सेल वॉल, लाइज इनर टू द प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल से अंदर टुवर्ड्स द साइटोप्लाज्म। इट इज फाउंड इन मैच्योर मतलब डिफरेंशिएट नॉन डिवाइडिंग सेल। जो सेल डिफरेंशिएट हो चुके हैं दे आर नॉन डिवाइडिंग सेल। ठीक है, और उसमें ये सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो होगा। एग्जाम्पल हमने लिखे हैं ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स व्हाट, ट्रैकिड्स इज अ यूनिट ऑफ जाइलम, राइट।
vessels, that is also a unit of xylem. Other than that, collenchyma tissue and sclerenchyma tissues. Collenchyma also shows the deposition of many impermeable substances. तो ये जो है वो सारे क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल है, राइट. ओके, ये सारी जगह पे होंगे. shows accretional growth. Accretional growth means what? Growth by addition or deposition of external or non-living substance. तो non-living substance जो है वो डिपोजिट हो रहा है, क्या है वो सेल्यूलोज है. क्या है वो? सेल्यूलोज. और यहाँ से वो डिपोजिट हो रहा है from the cytoplasmic part, right? Okay, it is thicker, कितना 5 to 10 micrometer as compared to the primary cell wall. तो primary cell wall से वो काफी कैसा है, thick. तो main part जो cell wall का बनाता है वो कौन सा है, secondary cell wall, and that is why it is normally it is considered as a dead part, right? But the primary one is active in a living cell only, huh? In only living cell, which contain protoplasm. Okay, secondary wall is deposited in 3 layer, S1, S2 and S3. तीनों में फर्क क्या है? The only difference is that orientation of cellulose. One has vertical, then horizontal, then oblique. ऐसा ही हो, ऐसा जरूर नहीं है, लेकिन orientation different है. Okay. These 3 layer differ in orientation of microfibrils. Basically macrofibrils आता है वहाँ पे, वो भी लिख सकते हो आप. Chemical composition. Secondary cell wall is made up of cellulose, लेकिन यहाँ पे predominantly cellulose. याद रखना, वहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया था किसमें, हेमीसेल्यूलोज में. ठीक है, यहाँ पे भी देखिए हेमीसेल्यूलोज तो है, but predominantly it is made up of what? Cellulose, right? चलिए, it may get deposited with, मतलब सेकेंडरी सेल वॉल है. देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया भी था, अगर इस डायग्राम में देखिए तो सेकेंडरी सेल वॉल के बाद भी एक लेयर जो है वो डेवलप हो सकता है, वो डिपोजिशन जो है हो सकता है. ठीक है, चलिए अगर हम वो लेयर की बात करें, इट मे गेट डिपोजिटेड विथ, पहला जो है वो कौन से हम बात कर रहे हैं, शुबेरिन. तो शुबेरिन जो है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, किस में, इनिशियल स्टेज में. शुबेरिन जो है, देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ शुबेरिन, ठीक है, किसके ऊपर, सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर, साइटोप्लाज्मिक पार्ट से, राइट, बाय शुबेरिनाइजेशन. शुबेरिनाइजेशन मतलब क्या, डिपोजिशन ऑफ शुबेरिन. सो शुबेरिन इज अ वाटरप्रूफ फैटी मटेरियल. इट इज फाउंड इन अ कॉर्क सेल, वो भी हम पढ़ चुके हैं, एज वेल एज इन अ कैस्पेरियन स्ट्रिप ऑफ एंडोडर्मिस. जब हम प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे तो प्लांट एनाटॉमी में जब हम रूट का टीएस लेंगे तो वो रूट के टीएस में सबसे बाहर जो हो क्या होगा, एपिडर्मिस. उसके बाद जो है वो क्या होगा, तो लोअर एपिडर्मिस. उसके बाद जो है वो क्या होगा, कॉर्टेक्स. उसके बाद जो क्या होगा, द लास्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज व्हाट, एंडोडर्मिस. तो वो एंडोडर्मिस के आसपास जो शुबेरिन का डिपोजिशन होगा, एंड दैट इज नोन एज अ कास्पेरियन स्ट्रिप, एंड इट इज वाटर इम्परमिएबल. वो हम डिटेल में उस चैप्टर में देखेंगे, राइट. चलिए, इसके अलावा क्यूटीन, बाय क्यूटिनाइजेशन, क्यूटीन का डिपोजिशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज क्यूटिनाइजेशन. सो क्यूटीन इज ऑल्सो फैटी मटेरियल. इट रिड्यूसेस द ट्रांसपिरेशन एंड इज फाउंड इन एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो प्लांट जो है उसमें ट्रांसपिरेशन कहाँ से होता है. सपोज मैं यहाँ पे अगर लीव्स जो है बनाऊं, ठीक है, ये सपोज आप ऐसे समझ लो, दिस इज नथिंग बट द लीव्स, ठीक है, और ये जो है उसका अपर एपिडर्मिस है. ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें तो सनलाइट जो यहां से आ रहा है, ठीक है, आपने लीव्स जो देखे भी होंगे, तो लीव्स का जो अपर एपिडर्मिस जो है इट इज स्लाइटली शाइनी देन द लोअर वन. तो वो शाइनी क्यों है, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ क्यूटीन. एंड एक ही पार्ट में क्यूटीन नहीं होगा, क्यूटीन इज नॉट कंटिन्यूअस लेयर. जहां जहां पे स्टोमेटा होंगे वो पार्ट में क्यूटीन नहीं होगा, बाकी के सारे जो एपिडर्मल सेल्स हैं दैट इज कवर विद द क्यूटीन. और उससे क्या होगा, उससे जो है वो हम ये बोल सकते हैं कि यहां से वाटर लॉस जो है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस. एंड दैट वाटर लॉस निच इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, और वो क्या, कौन सी प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन. वो कौन सी प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन. सो बेसिकली इट प्रिवेंट्स द ट्रांसपिरेशन. ठीक है, चलिए इसके अलावा हम बात करें तो लिग्निन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बाय लिग्निफिकेशन. इट इज अ पॉलीमर ऑफ कॉनिफेराइल एंड कॉमेराइल अल्कोहल. ये चीज जो याद रखना, ठीक है. It is found in woody parts and provides strength and rigidity. तो कोई भी ट्री है, लार्ज ट्री, ठीक है, तो उसका जो बाहर का जो सरफेस है, स्किन जो है, राइट, उस स्किन में अगर आप देखेंगे तो दे आर डेड सेल एंड दे आर डिपोजिटेड विद द लिग्निन. वो लिग्निफाइड है, ठीक है, और वो डेड सेल है. चलिए उसके अलावा सिलिका, राइट, फाउंड इन लीव्स ऑफ ग्रासेस. ग्रासेस जो है उसके लीव्स जो है उसके ऊपर क्या होगा, सिलिका, और इसलिए वो भी आपको थोड़े शाइनी जो है दिखाई देंगे. इसके अलावा अगर हम बात करें तो डायटम्स, इसके अलावा किसकी हम बात कर रहे हैं, डायटम्स, वो हम प्लांट क्लासिफिकेशन में जो है वो आगे पढ़ेंगे.
ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन में हम प्रोटिस्टा में भी ये पढ़ेंगे। तो डायटम्स जो है वो डायटम्स जो है इसकी अगर हम बात करें तो ये ऑर्गेनिज्म ऐसी है जो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करती है, ठीक है। तो डायटम्स जो है उसकी जो सेल वॉल है वो सेल वॉल किससे बनी होती है, सिलिका से। और इसलिए देखिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन हम ये बोल सकते हैं कि हमारे प्लैनेट पे बहुत सारे जोग्राफिकल चेंजेस आए। आज जहाँ पे लैंड है वो वहाँ पे पहले जो है वो क्या था, पानी था, ठीक है। तो डायटम्स जो है दे आर बेसिकली फाउंड इन अ मरीन वाटर, फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, लेकिन वो डायटम्स जो उसकी सेल वॉल किससे बनी है, सिलिका से। तो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे हम ये बोल सकते हैं कि टेरेस्ट्रियल एरिया है, जब हम वहाँ पे डिगिंग जो करेंगे मतलब खुदाई काम करेंगे तो वहाँ से बहुत ही रिच सोर्स आपको मिलेगा, किसका, सिलिका। उसको हम क्या बोलेंगे, सिलिकेसियस अर्थ, ठीक है। और वो वहाँ पे क्यों है, बिकॉज पास्ट में वहाँ पे क्या होंगे, डायटम्स जो है वो हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है। चलिए, म्यूसिलेज। म्यूसिलेज इज अ आउटर कवरिंग विच इज फाउंड इन अ फंजाई। और इसलिए देखिए कि म्यूसिलेज जो है उसकी वजह से फंजाई जो है उसकी सरफेस जो है वो थोड़ी आपको कैसे दिखेगी, फंजाई की सरफेस जो है वो थोड़ी स्लाइम दिखेगी, ठीक है। स्लाइम मोड और सब पड़ चुके हैं, तो उसमें क्या होगा, म्यूसिलेज। और लास्ट जो है दैट इज काइटिन विच इज फाउंड इन द फंजाई। फंजाई जो है उसकी सेल वॉल जो है उसके ऊपर डिपोजिशन है, किसका, काइटिन का, ठीक है। लेकिन मेनली इट इज फाउंड इन द फंजाई। चलिए, तो ये हमने जो बात की दैट इज अबाउट द डिपोजिशन। पहले हमने बात की प्राइमरी सेल वॉल, फिर हमने बात की सेकेंडरी सेल वॉल, और सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर ऐसे ऐसे डिपोजिशन जो है वो हो सकते हैं। लास्ट में जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द सेकेंडरी सेल वॉल जो है उसमें डिपोजिशन। देखिए एक पॉइंट जो हम जो है वो बाकी रह गए वो हम देख लेते हैं। सेकेंडरी वॉल डिपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म इन जाइलम। जाइलम में वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, राइट, पर्टिकुलर इन टैकिड्स एंड वासल्स। वो इसलिए क्योंकि जाइलम जो है वो जाइलम किससे रिलेटेड है, जाइलम जो है इट इज नथिंग बट द वास्कुलर टिश्यू, और उसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ द वाटर प्लस मिनरल आयंस फ्रॉम रूट्स टुवर्ड्स द एरियल पार्ट, ठीक है। तो वहां पे कंटिन्यूस नहीं होंगे, इट कंटेन्स पोर्स इन इट, ठीक है। चलिए, इट इज एब्सेंट एट सर्टेन एरियाज कॉल्ड पिट। तो ये जो डिपोजिशन जो है वो बहुत सारे ऐसे भी एरिया है कि जहां पे वो डिपोजिशन जो है वो नहीं होगा, राइट। पिट्स ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल आर ऑपोजिट टू ईच अदर। अगर एडजेसेंट सेल वॉल की बात करें, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, ठीक है, एक सेल का यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, तो ये दोनों सेल का क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल, जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है वो, ठीक है। लेकिन दोनों के जो पीठ हैं वो देखिए एक दूसरे के कैसे आ रहे हैं, ऑपोजिट साइड पे, और तभी क्या पॉसिबल होगा, तभी जो है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो पॉसिबल होगा। पीट्स आर सेपरेटेड बाय पीट मेम्ब्रेन। पीट्स जो है दे आर सेपरेटेड बाय पीट मेम्ब्रेन। अब ये भी पीठ है, ये भी पीठ है, तो दोनों पीठ जो देखिए किससे सेपरेट हुए हैं, दोनों साइड पे क्या है, प्राइमरी सेल वॉल, और उसके बीच में क्या है, मिडल लैमेला। तो पीट मेम्ब्रेन जो है वो उसमें हम क्या कंसिडर करेंगे, पिट मेम्ब्रेन में हम कंसिडर करेंगे दो चीज, एक मिडल लैमेला एंड प्राइमरी सेल वॉल विच इज प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द मिडल लैमेला, ठीक है। सो पीट आर सेपरेटेड बाय पिट मेम्ब्रेन। कौन कौन सा है, मिडल लैमेला एंड प्राइमरी सेल वॉल। मिडल लैमेला एक होगा और उसके दोनों साइड पे क्या होंगे, प्राइमरी सेल वॉल विच सेपरेट द पिट, ओके। पिट मेम्ब्रेन इज परमिएबल, तभी तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सकता है, एंड हेल्प्स इन रैपिड ट्रांसलोकेशन ऑफ द मटेरियल बिटवीन द सेल। पीट मेम्ब्रेन जो क्या है, इट इज अ परमिएबल, ठीक है। और परमिएबल है इसलिए यहां से ये पीट के थ्रू इस साइड मटेरियल आ सकता है, यहां से इस साइड भी मटेरियल जो है वो जा सकता है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए पीठ जो है वो, यहाँ पे मैंने पीठ अलग बनाया है, यहाँ पे पीठ मैंने अलग बनाया है, ठीक है। तो दोनों जो है वो कैसे हैं, थोड़े थोड़े अलग अलग है, ओके। अब वो अलग क्यों है, अगर हम उसकी बात करें तो पिट्स आर ऑफ टू टाइप। एक जो है वो कौन सा है, सिंपल पिट। अब ये जो मैंने बनाया है ना नीचे का पार्ट, इट इज अ सिंपल पिट, याद रखना। और ये जो है इट इज अ बॉर्डर पिट। ऊपर का जो है कौन सा है, बॉर्डर पिट, नीचे का जो है वो कौन सा है, सिंपल पिट। अब सिंपल पिट में देखिए, ध्यान से देखिए, सिंपल पिट जो है उसमें साइटोप्लाज्मा साइड का जो ओपनिंग है वो, और बेस किसको बोलेंगे, इस साइड जो प्राइमरी सेल वॉल के साथ है वो दोनों का डायमीटर कैसा है, सेम। इस साइड देखिए दोनों का डायमीटर कैसा है, सेम, ठीक है, सिलिंड्रिकल फॉर्म। लेकिन यहाँ पे देखिए पीठ का जो ओपनिंग है वो कैसा है, नैरो, और बेस जो कैसा है, ब्रॉड। तो अगर ओपनिंग नैरो है, बेस जो कैसा है, ब्रॉड, किसका, पीठ का। ओपनिंग किसको बोलेंगे, टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म में है वो, ठीक है। बेस किसको बोलेंगे, टूवर्ड्स द प्राइमरी सेल वॉल, वो सेल वॉल की ओर है वो। तो पीठ का ओपनिंग टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म वो कैसा है, नैरो, और पीठ का बेस टूवर्ड्स द प्राइमरी सेल वॉल वो कैसा है,
ब्रॉड, ऐसे पीट को हम क्या बोलेंगे, बॉर्डर पीट। और बॉर्डर पीट जो है इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट इज फाउंड इन जिम्नोस्पर्म, इट इज फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। हम किसकी बात कर रहे हैं, बॉर्डर पिट की। सिंपल पिट में देखिए कि ओपनिंग मतलब फेस ऑफ पिट एज वेल एज बेस ऑफ पिट, वो दोनों कैसे हैं, सेम। और ये जो है दैट इज अ सिंपल पिट एंड इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म प्लांट जो है उसमें जो पीट होंगे वो कैसे होंगे, वो पीट जो है वो कैसे पीट है, सिंपल पीट। ठीक है, चलिए वापस देखते हैं। सिंपल पीट, पीट्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज, these are found in angiosperm, and border pits फ्लास्क शेप्ड पीट है। फ्लास्क का शेप कैसा होता है, बेस कैसा होता है, ब्रॉड, और उसका जो फेस होगा वो कैसा होगा, नैरो, राइट। सो बॉर्डर पीट फ्लास्क शेप्ड विथ ब्रॉड बेस एंड नैरो ओपनिंग, ओपनिंग कैसा है, नैरो, और बेस कैसा है, ब्रॉड, राइट। एंड दिस इज फाउंड इन ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो बॉर्डर पिट जिम्नोस्पर्म में और सिंपल पिट किस में जो देखेंगे, एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और पिट, ये तीनों चीजें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। पिट में वापस दो, सिंपल पिट विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म इज द मोस्ट इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म इन प्लांट किंगडम। ठीक है, और उससे सब इवॉल्व अगर हम बात करें तो वो कौन से है, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म कंटेन व्हाट, इट कंटेन बॉर्डर पिट। ठीक है, चलिए तो प्राइमरी सेल वॉल हमने देखा, सेकेंडरी सेल वॉल देखा हमने, इसके अलावा हमने पीट्स जो वो देखे। अब लास्ट पार्ट, राइट, दैट इज अ टर्शरी सेल वॉल। ठीक है, बहुत इजी है ये। टर्शरी सेल वॉल जो है वो हर एक में है, वो जरूरी नहीं है। इट इज फाउंड इन ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। याद रखना ट्रैकिड्स जो हो क्या है, ट्रैकिड्स इज अ डेड पार्ट। ठीक है, जहां जहां टर्शरी सेल वॉल होंगे वो सारे सेल जो कैसे होंगे, डेड ही होंगे, राइट। इट इज फाउंड इन द ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, वो कैसा पार्ट है, इट इज अ डेड पार्ट। एंड इट इज फाउंड इन द वेसल्स ऑफ एंजियोस्पर्म, और वो भी कैसा है, डेड पार्ट। ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड वेसल्स ऑफ एंजियोस्पर्म। सो बेसिकली ट्रैकिड्स एंड वेसल्स है क्या, दे आर द यूनिट, राइट, दे आर द यूनिट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स वास्कुलर टिश्यू विच इज नोन एज जाइलम, एंड इट इज रिलेटेड विद द ट्रांसलोकेशन ऑफ द वाटर एंड मिनरल आयंस, राइट। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, वास्कुलर टिश्यू। The vascular tissue दोनों, phloem and xylem, both are complex tissue which is made up of different kinds of unit। और उसमें अगर हम बात करें कि इसकी जाइलम की, तो जाइलम जो है वो किससे बना है, जाइलम बना है ट्रैकिड से, उसके बाद किससे बना है, वो वेसल्स से, उसके अलावा किससे बना है, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म एंड वेसल्स ऑफ एंजियोस्पर्म दोनों कैसा है, डेड। ठीक है, चलिए केमिकल कंपोजिशन जो है दैट इज जाइलन। टर्शियरी सेल वॉल जो है उसमें केमिकल कंपोजिशन किसका होगा, जाइलन का। जाइलन इज बेसिकली पॉलीसैकेराइड ऑफ जाइलोज शुगर, याद रखना ये जाइलोज शुगर। ठीक है, एंड लिग्निन। तो टर्शियरी सेल वॉल जो किससे बना है, लिग्निन सेल। तो इसलिए देखिए जब मैंने डायग्राम बनाया था तो मैंने डिपोजिशन तो दिखाया था, लेकिन डिपोजिशन में जब मैंने लिग्निन लिखा था तो मैंने वहां पे लेबलिंग क्या किया था, टर्शियरी सेल वॉल। तो एक बार लिग्निन डिपोजिट हो गया तो समझ लो कि भाई वो सेल अब कैसा है, डेड सेल। ठीक है, जहां जहां टर्शियरी सेल वॉल होगा वो सब कैसे सेल है, डेड सेल, क्योंकि फिर उसके बाद क्या नहीं होगा, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए इट प्रोवाइड एडिशनल स्ट्रेंथ। टर्शियरी सेल वॉल जो वो क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड एडिशनल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हमने तीनों जो है वो सेल वॉल के टाइप देखे, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल इज आउटर मोस्ट, गलती मत करना, इट इज द आउटर मोस्ट, रिमेन टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड टर्शियरी सेल वॉल इज द इनर मोस्ट विच विल रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर जस्ट क्या आ जाएगा, साइटोप्लाज्म, राइट। So thank you so much. I hope you enjoyed this lecture. If yes, if you like my teaching pattern, then you can subscribe my channel Advait Achievers, and you can also download the app from Play Store, that is Advait Achievers. And if you are comfortable with me, I guaranteed you that my other team members are also too good, right? They are too good to develop your career and your marks as well as your result, right? So please subscribe कीजिए. And thank you so much. Love you all. Vidyarthi Devo Bhava. Stay tuned. Jai Bharat.